عید اس لیے بھی زیادہ یاد آتے ہیں کہ صرف عید پہ گلے ملتے تھے ہم ڈیڈی کو, یہ بڑا ورنہ ہم دنیا ہاتھ میں ہے. لاتے تھے. میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ پوری زندگی میرے باپ نے کرختگی میں گزاری ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے پاؤں دباؤں, میں پاؤں دبانے لگتا ہوں, جھٹک دیتے ہیں, تو کوئی مجھے دعا بتائیں یار کہ میں اپنے باپ کو گلے لگا لوں. وہ شخص مسلسل رو رہا تھا. ان کا کہ میری بہنوں کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ وہ ابا کے پاس بیٹھی رہتی ہیں, بہنیں آتی ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کملی بچھایا کرتے تھے, تو وہ اسپیشلی اپنی چادر جو ہوتی ہے وہ بیڈ پہ ہی رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھو. مجھے جو ہے وہ انہوں نے بڑی سختی میں پالا ہے, وہ کہ تم خراب نہ ہو جاؤ. وہ میں خراب تو نہیں ہوا, لیکن میں ان کی محبت کو ترستا ہوں. ہمارے کلاس فیلو نے سوال پوچھا تمہاری آواز اتنی اچھی کیوں ہے؟ اب میں کیا بتاؤں کہ میں نے سرہانے میں منہ دے کے آواز بنائی ہے, میں کیا بتاؤں کہ میں نے گھڑولی میں آواز جو ہے وہ پہلے اس کی تربیت کی. کچھ بھی ایسا نہیں ہے, یہ صرف عطا ہے, اور قدرت جو آپ کو ٹیلنٹ دیتی ہے اس کا نکھار بھی پیدا کر دیتی ہے اور اس سے وہ کام بھی لے لیتی ہے. میں ان دونوں نوجوانوں کی بات سن رہی نوجوانی ہم بابے ہیں, میں تو بابا ہوں. یہ چلے جواب کہہ دیتے ہیں. اصل میں وہ عمر کے اس حصے میں ہے نا کہ نہیں مجھے نہیں لگتا, مجھے نہیں لگتا عمر کے عید کا شو ہے, لائٹ رکھیں. نہیں لیکن ایک میرے جاننے والے ہیں, تو وہ میں نے اس کو ایک دفعہ بہت ڈانٹا. میں نے کہا مطلب تمہاری کوئی عید تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں ہے. ابھی میرے بچوں کو میں شاپنگ کروانے لے کے گیا تھا, تو وہ لاکھ روپے تک چلے گئے ان کی شاپنگ نا. مجھے 2500 روپیہ ملتا تھا, 1500 روپیہ ملتا تھا یوزلی, جس میں 2 پینٹیں آتی تھیں, 150 کی 250 کی پینوراما سے پینٹ ملتی تھی, ایک ٹی شرٹ لے لیتے تھے یا شرٹ لے لیتے تھے. اگر سردی میں اس وقت سردی میں عید تھی تو جیکٹ لیتے وقت بڑی پریشانی ہوتی تھی, جیکٹ پرانی پہننی پڑتی. اور میں جب اپنے بچوں کو شاپنگ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا نا, تو میں نے ایک کو منع کیا, کہا نہیں یہ نہیں دینا. تو اس کا جب منہ بنا نا تو میرا دل کیا چلو یار لے دو اس کو. پھر آپ نے کہا نہیں, میرا اپنا ٹائم یاد آ گیا نا کہ یار وہ کتنا مشکل تو تھا. السلام علیکم, میں ہوں تہمینہ شیخ. میری طرف سے تمام مسلمانوں کو, تمام لوگوں کو, پاکستانی اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں جو بیٹھا ہے مسلمان, ان تمام لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. آج آپ مجھے کسی کرائم شو میں, آج آپ مجھے کسی ملزم نہیں, بلکہ آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ان ستاروں میں جن کو آپ پسند کرتے ہیں, جو مختلف جگہوں پر اپنی چمک چھوڑتے ہیں, پھر اگلی جگہ چھوڑتے ہیں, پھر اگلی جگہ ان کی شائن جو ہے وہ شائننگ ہوتی نظر آتی. میرے ساتھ بہت خوبصورت, بہت اچھے چہرے موجود ہیں جن سے ہم عید کی خوشیاں بانٹیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ عید کا دن کیسا گزر رہا ہے, بچپن کی یادیں کیا ہیں اور اب کی یادیں کیا ہیں, اور کیا کرنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ جو پہلی پرسنالٹی موجود ہیں, جنہوں نے نہ صرف اپنی پرسنالٹی, اپنا کام, اپنی پہچان اور اپنی شناخت اس پوری فیلڈ میں ہر جگہ پر منوائی, لوگ بہت پسند کرتے ہیں. ایون دین بڑے بڑے لوگ اٹھ کے آتے ہیں, او بٹ صاحب آئے ہیں, بٹ صاحب آئے ہیں, السلام علیکم بٹ صاحب. زہیب بٹ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں, میرے لیے اسپیشلی طور پر قابل احترام بھی ہے اور بھائی بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کتنا اچھا تعارف کروایا آپ نے. عید مبارک. شکریہ آپ کا, عید مبارک آپ کو بھی. خیر مبارک. کیسی گزر رہی ہے عید؟ الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے. تمینہ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, مزے میں, فریش. بہت شکریہ. ان کے ساتھ جو دوسری پرسنالٹی ہیں جناب, آپ یقین کیجئے کہ میں ان کی جو موٹیویشن ہے, اکثر اوقات وہ اکیلے بیٹھ کے 1 سے 2 مرتبہ ویڈیو کو بار بار دیکھ رہی ہوتی ہوں, جس سے بہت کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, مستقبل کا, ماضی کا, اور بہت چھوٹی چھوٹی سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان الجھا ہوتا ہے. وہ آدمی بھی ہو سکتا ہے, وہ عورت بھی ہو سکتی ہے, وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے, وہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے. تو میں چونکہ ذاتی طور پر ان کو سنتی ہوں, بہت اچھے لگتے ہیں مجھے, اور کام کی حد تک جب ہم بات کرتے ہیں تو میں کیا, پاکستانی کیا, ملک سے باہر بھی لوگ پسند کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں صفدر علی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, آپ کا بہت شکریہ. زہیب صاحب آج پکار ہے پوری دنیا تک پہنچے گا. جس انداز سے تعارف ہو رہا ہے اور جس انداز سے انہوں نے پروگرام کو ایک ٹیمپو سیٹ کر دیا سٹارٹ والا, شاندار. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ تہمینہ جو ہے وہ نیا روپ دیکھا. دنیا کہے گی وہ پکار چھوڑے, یہ پکار کریں. آپ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ جو تیسری پرسنالٹی موجود ہیں, ایک خاتون ہوتے ہوئے, زندگی کے جھمیلوں سے گزرتے ہوئے, کبھی دائیں کبھی بائیں, اپنے آپ کو منوایا, ایک نام بنایا, ایک کامیاب زندگی گزاری, اور پھر ان سے سیکھنے بہت سے لوگ آئے. اور میرے پاس جب سالوں پہلے پروگرام میں یہ آئیں تو یقین کیجئے ان کے جانے کے بعد میں نے وہ کالز لی, میں نے وہ کالز لائیو لی, اور باقاعدہ ان کو ان کے نمبرز دیے, بتایا کہ ہاں زندگی اسے کہتے ہیں. ڈاکٹر آصفہ پروفیسر ہیں,
मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम तहमीना, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठंडी मीठी ईद मजे की- मुबारक। मीठी मीठी। ठंडी भी। हाँ, ईद मुबारक ईद आपको। मुबारक। कैसी हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? ठीक। इलाज जारी है? इलाज जारी है। बिल्कुल ठीक हंसते रहे तो फिर इलाज भी चाहिए होता है। अच्छा, आज हमने सब ने हंसते रहना है ना। हाँ। तो जब हमने हंसना है तो हम सब के दांत नजर आने हैं, और ये डेंटिस्ट भी हैं, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। हमने साथ साथ आपसे बहुत सी बातें सीखनी भी है, पूछनी भी है। ईद कैसे मनाई? ईद मैं हमेशा से पाकिस्तान में ही रही। हाँ। लेकिन कुछ अरसा जब बाहर रही तो अब मेरी ईद डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती है? डिफरेंट होती है। हम यहाँ पर खवातीन ईद की नमाज पढ़ने नहीं जाती। बिल्कुल। लेकिन जब मैं कम बाहर जाती हैं, जाती हैं लेकिन बहुत कम कम जाती है। हाँ। किचन में ही। लेकिन जब से मैं बाहर कुछ अरसा रह के वापस आई तो मैंने अब ये असूल बना लिया कि ईद की नमाज हमने पढ़नी ही पढ़नी है। तो मॉडल टाउन पार्क में बहुत बड़ा खूबसूरत इज्तिमा होता है ईद का। बिल्कुल। बारिश की नजर भी हो जाता है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये है कि उसका बहुत मजा आता है। मजा आता है, मतलब मजा स्टार्ट होता है ना तो लगता है कि हाँ ईद है। हाँ, वो जो इज्तिमाइयत है ना ईदगाह वाली, वो मेरा ख्याल में हम पाकिस्तानी खवातीन की जिंदगी में कम है। और मैं अपनी सब फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में कहती हूँ कि जाएं, औरतें भी जाएं। बिल्कुल। सिर्फ किचन में नहीं रहना, किचन हाँ। में तो रहना ही रहना है। बिल्कुल लेकिन ठीक है। किचन में तो रहना पड़ेगा, नहीं, वो किचन तो में तो रहेंगे आप, लेकिन आपको ईद के लिए यानी जो आपको बाजमात जो नमाज है वो भी अदा करनी ये चाहिए। एक मर्द बड़ा बोला है, पॉइंट है। किचन में तो रहना पड़ेगा। नहीं, जो नहीं, किचन में वो मर्द वाली बात से हट कर भी जाहिर है कि उन्हें पता है कि किचन के काम करने हैं। लेकिन हम खवातीन की ईद भी तो Yes, किचन से ही है yes, ना, पूरे हाँ, घर की ईद exactly, किचन से जुड़ी है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जमात के साथ नमाज पढ़ने जी। की ईदगाह में। और जो तो आपने अच्छा बात कही है ना मर्द वाली, उन्होंने उस बात की तस्दीक कर दी कि उन्होंने कह दिया कि हमारी तो ईद भी किचन से ही है ना। हाँ, किचन से अब देखा आपने हल्की सी पुकार आई किचन में आपने कैसी ईद गुजारी? है। ये आप कंटिन्यू करें। नहीं आप प्लीज आप पूछें। कैसी ईद गुजारी? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम यहाँ पर सेट पर मौजूद हैं तो वो तमाम तर यादें ताज़ा हो रही हैं जब हम आपकी जगह पर बैठकर दूसरे गेस्ट को बुला रहे होते थे और उनसे बात कर रहे होते थे, तो वो यादें भी ताज़ा हो रही हैं। और फिर जाहिर है कि ये इस ईद को मीठी ईद से ताबीर किया जाता है। तो मैं तो 2-3 दिन पहले ही ये बात कहने लग जाता हूँ व्हाट्सएप के, इस ईद पर आपने रोना नहीं है और आपने सोना नहीं है। और आपको पता है कि हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि मर्द बस नमाज पढ़ी और आके लंबी तान के सो गए और शाम को जाके उठे और उसके बाद फिर दोस्तों से मिलना हुआ तो मिल लिया। औरतें खातीन जो हैं वो बेचारी वो सारा दिन किचन में रहती हैं और उसके बाद वो जो सारी रातें जाग रही होती थी, बेचारी नहीं नहीं, बोले। बेचारी से मुराद मतलब उनकी मेहनत, ये भी ट्रिब्यूट ही है। बेचारी बोलना वो इस सेंस में नहीं है कि वो बेचारी होती हो, तो मैंने पता है वो तो आपको भी पता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी यादें जाहिर है कि ताजा कर रहे हैं। तो मैं 3 दिन पहले से ये बात कर रहा होता हूँ कि आपने अपनी ईद भरपूर मनानी है। बिल्कुल सही है। और मैं तो इस बात की बाकायदा जो है वो मुहिम चलाता हूँ, तबलीग करता हूँ कि आपने खुश रहना भी है, खुश रखना भी है। और अगर कोई छोटी मोटी चपकलश हो गई है घर में, क्योंकि ईद आपकी ज्यादातर आपके अपनों में गुजर रही होती है, बिल्कुल। तो कोई छोटी मोटी चपकलश है, कोई लड़ाई है, कोशिश करें माफी मांग लें पहले, बिल्कुल फिर सही है। माफ कर दें। और फिर जो अपने आपके ताल्लुकात हैं उनमें इज्जत को बहाल करें, तवज्जो को बहाल करें और मोहब्बत को बहाल करें, क्योंकि ये 3 बुनियादी स्तून है किसी भी ताल्लुक के। सही। तो ये मैं तो ईद के ऊपर भी यही जाहिर है कि सारे का सारा काम कर रहा जाहिर है हूं। वो जी। जिंदगी जिसमें गुजरती है तो फिर Exactly. इंसान उसका आदी होता है। जोहेब भट्ट साहब, ईदियां कितनी दी और कितनी ली? लेने वाला तो काम खत्म हो गया। अब सिर्फ दे ही रहे हैं जब से थोड़ा सा बड़े हुए हैं। लेकिन ये ईद मुख्तलिफ इस तरह से है कि पिछले 2-3 साल से जब से डैडी गए हैं, मैंने जब डैडी थे तो डैडी जाया करते थे सुबह सुबह अपने वालिदैन की कब्र पे ना, तो मैं बीच में छुट्टी मार जाता था कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, मैं फिर आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। बचपना। हाँ मतलब मैं आ रहा हूँ, आप चले मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे करके डंडी मार देते थे। फिर जब डैडी जाके सो गए वहां पे तो अब हमें जाना पड़ता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे डैडी जिस मोहब्बत से जाते थे वो क्या थी। तो अब वही एक तरतीब सी है कि मैं और मेरा बेटा जाते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के फिर हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान से नाश्ता लेते हुए घर आते हैं। जो मेरे डैडी का मामूल था वो अब मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूँ कि ऐसे करना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। तो ये इस तरह ये ईदें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई हैं। और अब जब बाप नहीं रहता, छत नहीं रहती ना, तो आपको छत बनना पड़ता है। तो अब समझ में आता है कि ये क्या फीलिंग होती है। सबकी ईदियां, सबके घरों में जाना, सबके बहनों के घरों में जाना, पहले जो डैडी करते थे वो सारा कुछ करना, ये बड़ा एक जिम्मेदारी वाला काम है। मैं थोड़ा सा इस मामले में कामचोर हूँ, पर मेरी अम्मी मुझे जबरदस्ती
अब लेके जाती हैं और फिर अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब ये फिर करना पड़ता है सारा कुछ, तो बिल्कुल। अभी थोड़ी सी आपकी डिफरेंट तो है, वालिद साहब के साथ जरा अटैचमेंट भी ज्यादा थी, ज्यादा थी, तो दोस्तों उनके वाला बाद हिसाब। बिल्कुल दोस्तों वाला हिसाब, और उनके बाद जाहिर है वो कमी सारी जिंदगी के लिए रहती है, और खसूसी तौर पे ईद होती है तो ज्यादा याद आती ऐसे ही है, आम रूटीन के निस्बत। ऐसे ही। और वो ईद इसलिए भी ज्यादा याद आते हैं कि सिर्फ ईद पे गले मिलते थे हम डैडी को, ये बड़ा वरना हम अलमिया हाथ है। मिलाते थे, वे भाई ये बड़ा अलमिया है, दोस्तों वाला यकीन हिसाब करें, था मैं ना? मैं अपने हाथ मिलाते थे। डैडी ना हाँ। बड़े सख्त थे, तो डैडी से जो लवी डबी वाला सीन नहीं था, तो बड़ा अलमिया है, यकीन करें। गले मिलना सिर्फ ईद पे होता था जिसमें हम गले मिलते थे। मैं ना यही बात ना, मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा कि पूरी जिंदगी मेरे बाप ने करख्तगी में गुजारी है, मेरा दिल करता है कि मैं उनके पाँव दबाऊं, मैं पाँव दबाने लगता हूँ, झटक देते हैं, अच्छा, झटक देते हैं, तो कोई मुझे दुआ बताएं यार कि मैं अपने बाप को गले लगा लूं जिस तरह से आपने तो वो शख्स मुसलसल रो रहा था। उनका कि मेरी बहनों को ये प्रिविलेज हासिल है कि वो अब्बा के पास बैठी रहती हैं, वो आते हैं, बहनें आती हैं तो उनके लिए खड़े हो जाते हैं। अब वो कहते हैं जी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली बिछाया करते थे, तो वो स्पेशली अपनी चादर जो होती है वो बेड पे ही रख देते हैं, कहते हैं यहाँ पर बैठो। मुझे जो है वो उन्होंने बड़ी सख्ती में पाला है, वो कि तुम खराब ना हो जाओ। वो मैं खराब तो नहीं हुआ, लेकिन मैं उनकी मोहब्बत को तरसता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं बस ठीक है, कोई बात नहीं। और अब वो इतने बूढ़े हैं कि मैं उन्हें लेकर जा रहा होता हूँ, उन्हें कहीं लेकर जाना है, कहीं भी लेकर जाना है तो मैं लेकर जाता हूँ। तो मैंने बेसिकली ज़ोएब भाई की बात से रिलेट किया है। वो शख्स इस कदर रो रहा था कि यार मुझे मेरा बाप उस वक्त अगर गले लगाने देता जिस वक्त वो भी महसूस कर सकता तो क्या ही बड़ी बात होती। और तो इस ईद पे तो हाँ, और इस ईद पे तो जो आपके पास मौजूद है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा तो ये पैगाम है कि उनकी मौजूदगी को मनाएं, हम किसी के जाने को मनाते सेलिब्रेट हैं, करें। उनकी मौजूदगी को सेलिब्रेट करें। मेरी वालदा जब बैठी होती हैं या मेरे डैडी जब जिंदा थे, तो पता नहीं क्यों इंसान के दिल में ख्याल आता है, मेरा दोस्त के वालिद साहब फौत हो गए, तो हम वहाँ बैठे हुए थे, वो ना वाकया सुना रहा था अपनी माँ बाप का, दोनों का, उसकी माँ दोनों नहीं थे, तो बताते ना मैं अफसोस करने गए थे। पहले तो ख्याल नहीं आया कि ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वो बात करते ना तो मुझे अपने पेरेंट्स, मैंने फौरन वहां से उठा, मैं गाड़ी निकाली, मैं घर आया, मैंने दोनों को गाड़ी में बिठाया और मैं लेके बाहर चला गया, फिर फिरता रहा उनके साथ। जबरदस्त। और मैंने सोचा कि ये तो इतना अहम टाइम है, मुझे इनके साथ स्पेंड करना चाहिए, जो मैं बाहर दोस्तों में इधर उधर जाता हूँ, कि ये पता नहीं कितना हमारा साथ है। बुजुर्ग हैं वो, कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे, लेकिन जितना भी टाइम हम साथ हैं उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं और फिर से कहानियां, किस्से, बचपन की यादें और ईद की बातें फिर से करेंगे। मैं इन दोनों नौजवानों की बात सुन रही थी। नौजवान ही हम बाबे हैं, मैं तो बाबा हूँ, ये चले जवान कह देते हैं। असल में वो उम्र के उस हिस्से में है ना कि नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता, लेना, मुझे नहीं लगता उम्र के ईद का शुभ है, लाइट रखें। नहीं, लेकिन कि हम छोटे हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह हमने ईदी लेकर जाना है। बस ठीक है, आप- ले लेनी है। मैंने क्या भरावां को मिलदियां ने, वो देनी है तो वो हम दे देंगे। हम तो औलाद की जगह पर खड़े हैं ना। अब ये नौजवान मजे कर ले मेरे माशाल्लाह से जवान बच्चे जी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े नहीं हुए लेकिन बड़े हो गए। लंबे लंबे से बेटे लंबे माशाल्लाह हो से गए। साथ खड़ी हो तो भाई लगते हैं। दोनों मैं बता यूनिवर्सिटीज देती में हूँ। हैं। तो अब ये है कि आप दोनों की बात सुनते हुए मुझे यही याद आ रहा था कि किस माँ बाप के होते हुए, और जाहिर है हम लड़कियों के एक माँ बाप नहीं होते, हमारे दो पेयर्स होते हैं, सास ऐसे ही है, ससुर भी। हाँ। जब वो सब चले जाते हैं तो वो सारे रोल हमें निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही है। हम उस वक्त कह रहे होते हैं कि अम्मी ये क्या कर रही है आप, ये क्यों कर रही हैं, अब हम वही कुछ कर रहे हैं। और यही मेरे ख्याल में तसलसल है रवायात का, ऐसे और ही। यही हमने अपने बच्चों को सिखाना है। बचपन की वो ईदी जो याद हो, भूलती ना हो, कितने पैसे मिलते थे अब्बा 10 से? रुपए 10 रुपए? 10 रुपए मिलते थे, और वो क्योंकि वो 1 रुपए 2 रुपए वाला दौर था। नहीं, उस वक्त दौर तो ठीक था, मुझे तो 20 रुपए दे के यूनिवर्सिटी भेजा करते थे। मेरा थोड़ा हालात ऐसे थे ना, व्हाइट कॉलर लोग थे, हम अंदरूर शहर में, आपको पता है चीजें ऐसी होती हैं। तो मेरे डैडी भी व्हाइट कॉलर थे, सहाफी थे, तो वो हमारा इतना ज्यादा वेल ऑफ नहीं हिसाब किताब था। मेरे डैडी कहते थे कि तेरे प्यो ने ना इज्जत बनाई है, पैसा नहीं बनाया। वो आपने प्योर जर्नलिज्म की है, आपके हाँ, वाले साहब ने प्योर जर्नलिज्म किया। तो मैं कभी कभी उन्हें कहता था कि मैं कभी सहाफी नहीं बनूंगा, पैसे नहीं कमाते, इतने गरीब है हम लोग। तो कभी कभी उन्हें ये कहता था, लेकिन आज मुझे एहसास होता है वो ठीक कहते थे। आज जब दुनिया मुझे कहती है ना कि ये कर लो मशहूर हो जाओगे, ये कर लो मशहूर हो जाओगे, फलां के साथ टक्कर ले लो मशहूर हो जाओगे। कितना मशहूर होना है यार भाई, मतलब
अब देखें कह रहे हैं कि मशहूर हो मशहूर पैसे तो की है। बात करें, पैसा, पैसा। हाँ, पैसे की बात करें, मशहूर आप पैसे हैं। की बात, पैसे की बात, दुनिया आपको sorry। फॉलो करती है, दुनिया जानती है, पैसे की बात कर बिल्कुल ले। है। हाँ, तो वो कहते हैं इससे करो पैसे आ जाएंगे, ये वायरल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे डैडी ठीक कहते थे। बिल्कुल ठीक वो है। डैडी मेरे जो बताते थे ना कि इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए इंसान की, मर्द की कम से कम, कि उसको कोई वो जाए, उसकी बात में असर होना चाहिए, वो किसी से बात करे, किसी को पता होना चाहिए कि अपने किरदार का आदमी है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है बनाना इस सारे को ना, तो उनके बाद ये फील होता है ना, समझो। महसूस होता है जब निभाना पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं इन दोनों नौजवानों की बात सुन रही थी। नौजवान ही हम बाबे हैं, मैं तो बाबा हूँ, ये चलिए जवान कह देती हूँ। असल में वो उम्र के उस हिस्से में है ना कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता उम्र के, ईद का शो है, लाइट रखें। नहीं, लेकिन अब ये नौजवान मजे कर ले हम। मेरे बच्चे माशाल्लाह से जवान बच्चे नहीं, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े नहीं हुए लेकिन बड़े हो गए। लंबे लंबे से बेटे लंबे लंबे हो से गए। साथ खड़ी हो तो भाई लगते हैं। दोनों मैं बता यूनिवर्सिटीज देती में हैं। तो अब ये है कि आप दोनों की बात सुनते हुए मुझे यही याद आ रहा था कि किस्सा माँ बाप के होते हुए, और जाहिर है हम लड़कियों के एक माँ बाप नहीं होते, हमारे दो पेयर्स होते हैं, सास ऐसे ही है। ससुर भी। हाँ। जब वो सब चले जाते हैं तो वो सारे रोल हमें निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही है। हम उस वक्त कह रहे होते हैं कि अम्मी ये क्या कर रही है आप, ये क्यों कर रही हैं, अब हम वही कुछ कर रहे हैं। और यही मेरे ख्याल में तसलसल है रवायात का, ऐसे ही। और यही हमने अपने बच्चों को सिखाना है। तो ईद पे बहुत ज़रूरी है कि मैं ये समझती हूँ कि फ्रेंड से आप मिलते रहते हैं, बिल्कुल बहुत सारी हमारी प्रोफेशनल दोस्तियाँ होती हैं वर्किंग लोगों ऑफिशियल। ऑफिशियल भी और इस तरह से, लेकिन ईद है आपके माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, आपके और आपके खावत के चाचे मामे फूफी खाला। बिल्कुल ये- सही। ये ईद है और इस ईद को उन्हीं के नाम करना चाहिए। दो ईदें उनके लिए, दिन साल के 2 दिन तो बिल्कुल उनके लिए सही है। ईदियाँ बांटी कितनी है? अब तो ईदियाँ बांटते ही हैं, हाँ, सिर्फ भाइयों से मिलती है, मिलती है। भाइयों से तो मिलती है। क्योंकि हमें ये टाइटल तो- मिल गया है तमीना Sorry? कि हम छोटे हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह हमने ईदी लेकर जाना है बच्चे। बस ठीक जैसा है, आप- ले लेनी है। मैंने क्या भरावां को मिलदियां ने, नहीं, वो देनी है तो वो हम दे देंगे। हम तो औलाद की जगह पर खड़े हैं ना। अच्छा, वर्किंग खवातीन का एक और भी मुझे हर साल में ना कहती हूँ अपने कुलीग से, छोटे हैं बेशक कई, बिल्कुल जो बहनों की तरह ट्रीट करते हैं, बाजियों की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मशवरा भी लेते हैं, हर चीज लेते हैं। जब ईद आती है ना तो साइड पे हो जाती है। मैं क्या आप इधर आओ ना, नहीं आप तो बड़ी है ना। मैं हाँ। मैं बड़ी हूँ तो क्या बहन तो हूँ, हाँ। चलो निकाल बिल्कुल दो सही, ईद। बिल्कुल सही। बेटों के साथ ईद सेलिब्रेट जाहिर है की और कर भी रही हैं और करेंगे भी यहाँ से जाके भी, और हमें भी टाइम दिया इसमें। वो एक ऐसी चीज जो चाहती थी कि इस ईद पर हो जाए और हो नहीं पाई। प्लानिंग होती है ना हर इंसान की, तो कोई ऐसी सबसे चीज। पहले तो जो छोटा बेटा है बाहर है, हाँ और ये पहली ईद है उसके बगैर। हाँ। लास्ट ईयर वो था इधर, तो वो काफी उदासी है। और बाकी ये है कि माँ बाप के और उनके रिश्तेदारों से मिलने, शहर से बाहर जाना, उनकी कब्र पे हाजिरी देना, ग्रेट। यही है। और जो बच्चे, खास तौर पे हमारे जवान बच्चे कहते हैं ना कि हम नमाज पढ़ने जाएं और आके सो जाएं, कोई आए ना तो बस हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ये नहीं नहीं होना चाहिए, ये नहीं ये तो गलत है। और ये लेकिन करने भी होता नहीं है। देना। नहीं नहीं, ये माँ का होता है या बाप का होता है कि ना करने देना, उन्हें प्यार मोहब्बत से। हाँ। नहीं, प्यार मोहब्बत से Tell नहीं, you. हाँ, वो सारी लड़के उम्र कहाँ मार खाई है सीखे अपने इस होते हैं बात प्यार में। मोहब्बत से? प्यार मोहब्बत से हो जाती है, माँ कर लेती है ना। नहीं, हमने सारी उम्र मार खाई है इस चीज के ऊपर, नहीं नहीं, पानी फेंका गया, पता नहीं क्या क्या मुकाबला टॉर्चर बराबर का होगा। टॉर्चरस होता है पार्ट साहब। ये टॉर्चरस मूवमेंट होता है ना कि जब आपके ऊपर से चादर उतार रहे हो, सुनना चाह रहे हैं आप? वो बंदा सुन रहा सारी रात, तो बंदा दोस्तों में अच्छा, बैठा एक रहा, और ये फिरता भी रहा। बात थी ना कि पहले गर्मी की ईद थी। हाँ। गर्मी की ईद मुश्किल काम था। जो सर्दी की ईद आती है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब ज़ाहिर है ड्रेसिंग, हाँ, मेकअप, हाँ। खवातीन का खसूसी तौर पे ज्वेलरी और आदमियों की वेस्ट कोट्स और ये वो होता है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल में सर्दी और गर्मी की ईद का भी फर्क पड़ता है। जैसे अच्छा। गर्मियों की जो जून की ईद, बकर ईद खास तौर पे हाँ। बहुत मुश्किल होती है। खाया नहीं जाता ना कुछ। खाया नहीं, पूरा खाया भी process नहीं कर- जाता नहीं है। नहीं, कुर्बानी खाया करना पकाया, वो- ओढ़ना पिछोना सब कुछ लेकिन मुश्किल हो ठंडी जाता है। और मीठी हाँ, ईद तो बहुत अच्छी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपसे मेरा एक ऐसा सवाल जो मैंने कभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं किया, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। ओए होए, फंस गए। नहीं फंसना नहीं। हर इंसान की पर्सनालिटी का एक और होता है। एक्चुअली इंसान जो टीवी पे दिखता है, जो वो काम कर रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो उसे करनी है, मस्ट करनी है। बनाम सरकार, जोहेब बट एक पर्सनालिटी, ऑफिशियल लोग, माशरा, उठना बैठना, बड़े बड़े डेरेदार, जग्गे, बदमाश, दुश्मनदार लोग,
डाले वाले लोग, इस टाइप के तमाम लोग मैंने अक्सर औकात ये फील किया, नोट किया, क्योंकि फील्ड में ज़ाहिर आमना सामना रहता है, व्हाट्सएप बहुत से ऐसे लोग जो उम्र में अच्छे खास से बड़े हैं, लेकिन बहुत झुक के मैंने मिलते हुए आपसे देखा। उनकी क्या है मेहरबानी इसके पीछे? मैं झुका ही रहता हूँ उनके सामने। उनकी मेहरबानी है या आपकी मेहरबानी है। मोहब्बत करते हैं मुझसे, खौफ नहीं खाते, मोहब्बत करते हैं। हर किसी को ऐसा लगता है कि ये हमारा है, हम में से है। दोस्तों, लाहौर शहर के बारे में कहता हूँ कि लाहौर अगर आपने लाहौर देखना तो मुझे देख लें, मैं लाहौर हूँ। तो ये लाहौर वाले स्पेशली बाहर भी कहीं कोई मिले या बड़े भी मिले, वो मुझे अपना समझते हैं। ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। इसका आगाज कब से आप हुआ? मुझे अपना भाई जब कहती हैं तो आपके दिल से भी दुआएं निकलती हैं मेरे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मुझे दिल अपना से भाई निकलती कहता है, दुआएं निकल, तो ये यही आपकी कमाई होती है। मेरी कमाई यही है कि मुझे जो लोग जिस तरह मिलते हैं वो दिल से मुझे दुआएं देते हैं, कि मैं दिल से उनके साथ चलने की कोशिश करता हूँ। वैसे अगर मैं कुछ भी उनके लिए कर पाता हूँ तो वो अल्लाह ताला की जात है जो मुझे वसीला बना देती है। लेकिन मेरे में ऐसी कोई वो बड़ाई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो शायद कखा कोलों भी हो लावा, लेकिन मेरा रब है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं जो मुझे ऐसी इज्जत देता रहता है और मुझे ऐसे ही सुरखरू करता रहता है, ये उसकी मेहरबानी है। और इसका आगाज कब से हुआ अंदाजन? बचपन से ही ऐसे है मेरे साथ। अच्छा, मैं अब हम 4 बहन भाई हैं, उसके बावजूद मैं सबसे लाडला हूँ। ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी होती है कई बच्चों पे। ये अल्लाह, मैं वही बता रहा हूँ कि अल्लाह की खास मेहरबानी है कि कई बच्चों पे होती है, कई बच्चे वैसे ही अच्छे लगते हैं। मैं ट्यूशन जहाँ पढ़ता था, मेरी मैडम हालांकि बहुत मारती थी, उन्होंने मुझे हर पॉसिबल, ये बड़ी बात आप निकाल रहे हैं। हर पॉसिबल चीज से मारा, लेकिन प्यार भी करती थी। प्यार भी करती है। प्यार ये करती थी कि मुझे अगर उन्होंने दाल चावल पकाए हैं तो उनको पता है कि इसको पसंद है, तो सारे बैठे हुए तो मुझे दाल चावल मिल जाते थे कि तू खा ले, तुझे पसंद है। तो मार भी मुझे सबसे ज्यादा पड़ी है, हर चीज से, पतीले से। ऑन स्क्रीन उन तमाम बच्चों से अफसोस करता हूं जिन्हें दाल चावल नहीं मिले, जिनके हिस्से की मोहब्बतें, जिनके हिस्से के दाल चावल जो भाई खा गए हैं। और एक और मजे की चीज मैं आपको बताऊं सफदर, मेरे साथ मेरे जो दोस्त है ना, जो मेरे जिगरी दोस्त हैं, जी, वो शुरू से ही मेरे साथ है। बड़ी यानी बात कि है जो ये। शुरू से मेरे साथ, यानी कि 35-40 साल हो गए जो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ। ये अभी जो मेरा प्रोड्यूसर है, ये भी मेरा बचपन में हमारा एक ही गली में गुजरा है, कि आमने सामने घर थे और हम इस तरह दोस्त हैं। बहुत बड़ी आसानी। तो ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मैं बदतमीजी भी कर जाऊं या शोखा भी हो जाऊं तो वो भी मुझे कबूल कर लेते हैं उस हालत में भी। तो ये अल्लाह की बड़ी खास नवाजिश होती है कई लोगों पे कि आपको लोग मोहब्बत करें। और मुझे ना दुख भी होता है कभी इस बात पे कि कोई मुझसे नाराज ना हो जाए। वो मेरे दिल में वो चीज खटकती रहती है। आप यकीन करो कि एक दफा हमारी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एहसास जिंदा है ना, सुना देते हैं, पता नहीं क्या। बता दें। एक दफा हम कॉलेज में थे तो कॉलेज में लोग लड़ते थे, हम भी लड़ते थे। तो एक दफा ऐसी गली में ना, उस सड़क के ऊपर कॉलेज के लड़के हम जा रहे, लड़ाई हो गई, बंदे को मारा, वो बंदा भी बदतमीजी कर रहा था, उसको मारा, खूब मारा। जब मार के हम इधर हटे ना तो मैंने देखा उसको ना, मेरा पंच बड़ी जोर से लग गया उसकी कमर में। तो ना वो ऐसे कर रहा था, मैं पता नहीं क्या, मैं समझ नहीं आई मुझे क्या हुआ। मैं फौरन उसके पास गया, मैं उसे मलना शुरू कर दिया। अब वो मुझे कह रहा है वो बड़ी लग गई। मैं कहा यार, उधर लस्सी वाला पास था, मैं लस्सी लेके आया, मैंने उसे लस्सी पिलाई। तो क्या, मैं कहा जोर दी तो नहीं लगी? कहता बड़ा मारे यार तुसी। तो मैं उसको कहा, मैं कहा सॉरी यार, चल माफ कर दे सानू। तो वो ऐसा कभी आपसे कोई नाराज हो जाए ना, मुझे आप यकीन करें ऐसा लगे कोई मुझसे नाराज हो, मुझे नींद नहीं आती सारी रात कि नाराज है मुझसे। अंदर एहसास जिंदा है। एम्पैथेटिक है ना, लीडरशिप के साथ साथ आप में एम्पैथेटिक क्वालिटीज हैं। वो बस नींद नहीं आती मुझे कि ये बंदा नाराज ना रहे मुझसे, किसी तरह जो देना दे दो इसको, सारा कुछ निकाल दो, अपना हमारे पास ना रहे, इसको मिल जाए। तो वो एक अंदर से सारी जो क्वालिटीज आप बता रहे हैं, बाहर से एक प्योर इंसान की ये बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो किसी को नाराज नहीं रहने देता, चाहे उसकी ज्यादती हो या ना हो। तो उनमें से ज़ोहैब सादी है। क्या कहेंगे सफदर, लोगों के मसाइल सुनना, अकेले में सुनना, फिर सुनकर उनके आंसू साफ करना, फिर उनको समझाना, फिर एक जो तेजी के साथ अंधेरे की तरफ जाते हुए लोग हैं, आती हैं औरतें हैं, उनको वहां से निकालना, और उसके बावजूद भी अपना चेहरा जो है वो ताजा रखना, क्या राज है? मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं। यस, सफदर के साथ मेरी जो पहली मुलाकात थी ना, इसकी आवाज के साथ थी। आवाज अच्छी है आवाज ना? के साथ इसका ऑडिशन चल रहा था। मैं बैठा हुआ था किसी जगह पे, Back in नाम- 2015 में भी 2014 16 तो मैं बैठा हुआ था बैक साइड पे, मेरी इस तरफ चेहरा था, टीवी पे इसका ऑडिशन चल रहा था, जो मेरे जो दोस्त थे वो देख रहे थे, हाय, हाय, और मैंने इसकी आवाज सुनी तो मैं वहां से उठ के आ गया।
कि आवाज अच्छी है। इतनी तासीर है इसकी आवाज में, इसके लहजे में, कि ये इसको मोटिवेशनल स्पीकर ही होना चाहिए। और आप इससे बात करें, इससे कोई चीज सुने, वो इसकी आवाज की तासीर है कि ये वो लफ्ज जो है ना वो सिरायत करते हैं आपको अच्छा लगता है कि कोई बंदा आपसे बात कर रहा है और आपको हील कर रहा है। तो हीलिंग वॉइस है ये। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्या राज है? ये जो पैसे वसूल वाली बात है। राज भी हीलिंग तो- वॉइस पैसे वसूल हो गए। नहीं, राज की मैं बात बता देता हूँ। मेरे से उसी टाइम पीरियड में मैं चूंकि बैतबाजी में था, डिबेटिंग में था, और जाहिर है कि आपकी तरबियत कर रही होती है कुदरत। तो मेरे से ऐसे ही एक हमारे क्लास फेलो ने सवाल पूछा, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी क्यों है? तो मेरा जो जवाब था वही जवाब मैं आज दोबारा कोट कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा कि अता पर सवाल तो होते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं होता। अब मैं क्या बताऊं कि मैंने सिरहाने में मुंह दे के आवाज बनाई है, मैं क्या बताऊं कि मैंने घड़ोली में आवाज जो है वो पहले उसकी तरबियत की। कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अता है। और कुदरत जो आपको टैलेंट देती है उसका निखार भी पैदा कर देती है और उससे वो काम भी ले लेती है। यानी मैं प्रोग्राम एंकर के तौर पर 2019 में काम कर रहा था हम न्यूज पे। प्रोग्राम एंकरिंग को छोड़ना, और आपको पता है कि प्रोग्राम एंकरिंग के लिए कितने जूते घिसा रहे होते हैं लोग, कितने कष्ट काट रहे होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को छोड़ा, दोबारा से अपने आप को एक इस किस्म के प्रोग्राम की तरफ लाए जो कि था ही हीलिंग का। इल्म दानिश के नाम से प्रोग्राम कर रहा था मैं पीटीवी पर, अभी भी वो चल रहा है सिलसिला। तो फिर कुदरत क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको टोन डाउन करती है, आपको उस तरफ लेकर आती है जो काम लेना है, जो वो काम लेना है लेना उसने है। बेसिकली। जो आपका सवाल था कि किस तरह से तरोताजा रहते हैं, हो हाथ का सिरहाना सब्जे का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो, रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस्दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो, हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद इन्हें जगा दे। ये हजरत इकबाल की नज्म है। और आप अंदाजा कीजिए, मैं जब जब इस नज्म को पढ़ता था मैं कहता था शायद इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो सकती है। मुझे लगता है कि मेरी ये दुआ कबूल हुई है कि मैं लोगों की इस अंदाज से बातें सुनने वाला बन गया। तो भाई ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, उनके पास पैसा बेतहाशा है, दौलत बेतहाशा है, ओहदे बेतहाशा है। यानी आप नाम लें, मुक्कन्ना के लोग भी हैं, अदलिया के लोग भी हैं, और रियासती आप इदारों के नाम ले लीजिए, ऐसे ही। लेकिन उनके पास सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है। या तो रात वो- की नींद नहीं है। हाँ, नींद नहीं है उनके पास, ठीक है। बिल्कुल। और वो अपना गम किसी को सुना नहीं सकते। उन्हें ये उम्मीद होती है कि यहाँ सुनाएंगे तो सुनी भी जाएगी, उन्हें ये उम्मीद होती है कि सुनाएंगे तो उसका हल भी निकलेगा, बिल्कुल। और उन्हें ये उम्मीद होती है कि आंसू जो है, जिस तरह से कहा जाता है ना कि अपने आंसू खालिक के सामने रखो, मखलूक के सामने ना रखो। बिल्कुल। और मखलूक में भी वही कोई बंदा हो जिसके सामने रखो तो वो ज़र्फ वाला हो, कम से कम तुम्हें और कुछ दे सके ना दे सके, तसल्ली दे सके। जब लोग रो रहे होते हैं तो मैं अंदर उन आंसुओं को उतार कर ये सोच रहा होता हूँ कि खालिक ये मेरे सामने नहीं रो रहे, ये तेरे सामने रो रहे हैं, क्योंकि बड़ी हिम्मत है बड़ी बात। अपने गम को किसी इंसान के सामने बयान करना। तो मुझे जो ताकत मिलती है वो ये कि जब वो हील होते हैं और हील होने के बाद आकर कहते हैं कि सर वो आपने जो फलां चीज बताई थी ना, वो जो फलां बात बताई थी ना, उसने काम कर दिया सर। अब मैं बड़े सुकून में, बड़े इत्मीनान में हूँ। मैं उस दिन आपको, हाँ, सेटिस्फेक्शन, आपको मैंने वॉइस मैसेज भी सुनाए थे लास्ट टाइम, ठीक बिल्कुल है। याद है मुझे। तो जब वो कहते हैं ना कि सर अब ठीक है चीजें, या बीवी कह रही होती सर शौहर अब इज्जत भी करता है, खर्चा भी देता है, या बच्चे कहते हैं कि वालिद साहब जो हैं अब घर आकर टाइम देने लग बिल्कुल गए सही हैं, है। या मर्द हजरात ये कहने लग जाते हैं कि अब हमारी जो बीवी है, मेरी जो बीवी है वो बाकियों की निस्बत मेरी सुनने लग गई है। तो मैं समझता हूँ कि वो पैसे पूरे हो गए, वो हाँ, बिल्कुल, एक मकसद पूरा होने इंसान लग जाता है। जब और जब मेहनत आप करता है। किसी के चेहरे पर तस्कीन को देखते हैं तो कुदरत आपके अंदर वो तस्कीन पैदा कर देती है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी के लिए सुकून की बुनियाद बने और आपको सुकून ना मिले, और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि आप किसी के लिए बेचैनी की बुनियाद बने और आपको जो है वो बेचैनी ये एक नजर लंबी आता है। डिबेट है, ये इसमें तो हाँ, बहुत कुछ है कहने हाँ, को। वो वाली डिबेट हम कर चुके हैं लेकिन हम एक एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप के बिल्कुल, एस्पेक्ट में बिल्कुल, जाहिर है कि एक बिल्कुल। बात कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं और फिर से कहानियां, किस्से, बचपन की यादें और ईद की बातें फिर से करेंगे। उससे मिलना तो उसे ईद मुबारक कहना, ये भी कहना मेरी ईद मुबारक कर दे। एक मेरे जानने वाले हैं, तो वो मैंने उसको एक दफा बहुत डांटा। मैंने कहा मतलब तुम्हारी कोई ईद तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं है, बहन भाइयों के साथ नहीं है, उस अदारे के साथ ठीक है तुम बहुत लाए, बिल्कुल सही। लेकिन अगर ईद अपनी फैमिली के साथ नहीं हाँ। है ईद का दिन,
तो मेरा ख्याल में फिर क्या फायदा सारी जिंदगी असल में ये भी फैमिली बन जाती है ना, अगर फैमिली ना होती तो तहमीना के कहने पे ज़ोएब भाई ने आना था। नहीं आना। मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रही। अभी मेरे बच्चों को मैं शॉपिंग करवाने लेके गया था मॉल में, तो वो लाख रुपए तक चले गए उनकी शॉपिंग। मुझे 2500 रुपया मिलता था, 1500 रुपया मिलता था यूजुअली, जिसमें 2 पैंटें आती थी, 150 की 250 की पैनोरामा से पैंट मिलती थी, एक टी शर्ट ले लेते थे या शर्ट ले लेते थे। अगर सर्दी में, उस जगह सर्दी में ही थी तो जैकेट लेते वक्त बड़ी परेशानी होती थी, जैकेट पुरानी पहननी पड़ी। और मैं जब अपने बच्चों को शॉपिंग करता हुआ देख रहा था ना, तो मैंने एक को मना किया, अच्छा। मैंने कहा नहीं ये नहीं लेना। तो उसका जब मुंह बना ना तो मेरा दिल किया चलो यार ले दो इसको। फिर आपने कहा नहीं, ठीक है। मेरा अपना टाइम याद आ गया ना कि यार वो कितना मुश्किल तो था। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर आसिफा, सालों हॉस्पिटल में सर्व किया और फिर उसके बाद अपना मेडिकल सेंटर बनाया। बच्चों में से किसी की ये ख्वाहिश है कि हम भी डॉक्टर बने? चल रहा है अभी, चल रहा है, मतलब सिलेक्शन चल रही है? नहीं, स्टडीज चल रही हैं? पे चल रहे हैं अभी। बिल्कुल सही है। आपकी तरफ से ये मोटिवेशन थी या उनकी अपनी चॉइस थी? नहीं, ये उनकी अपनी चॉइस है। एक्चुअली मैं फर्स्ट जनरेशन तो थी ही नहीं जी। मेरे जो बच्चे हैं उनके परदादा भी इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे। सही, माशाल्लाह, वेरी गुड। मेरे अपने बहन भाई हम काफी सारे डॉक्टर हैं। जी जी जी, तो बिल्कुल। वो फिर मेरा ख्याल में बच्चों में खुद ब खुद आ भी जाती है। और कुछ बच्चे जो माँ बाप को प्रोफेशन से लगाव हो जाता है और कुछ जो है भाग जाते हैं। हाँ, वो देख लेते हैं ना बिल्कुल कि बिल्कुल इसमें चैलेंजेस क्या हैं। बिल्कुल, बारीक तो बीनी उससे से बहुत करीब सारे से भाग देखते भी हैं। जाते हैं। तो आजकल ज्यादा डॉक्टर्स के बच्चे भाग रहे हैं। भाग रहे हैं। लेकिन मैंने ये सुना है कि फीसिस और वो सिस्टम डॉक्टरी से बड़ी दूर दूर लोग भाग रहे हैं, खसूसी तौर पे MBBS। इसमें ये है कि जिनके पेरेंट्स के अपने सेटअप है उनके लिए तो पाकिस्तान में अभी भी बहुत अच्छा है। मजे वैसे हैं? तो, हाँ, नहीं, आबादी के साथ डॉक्टरी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा। और अगर मसला ये है कि हर कोई ख्वाब देखता है बड़े, हाँ। शॉर्टकट है नहीं। अगर आपने स्पेशलिस्ट बनना है तो आप सरकारी से पढ़ें या प्राइवेट से पढ़ें, लेकिन उसके लिए एक लंबा पैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल। उस पैसेज पे गुजर के ही आप बनेंगे ना स्पेशलिस्ट। और जब वो कंपैरिजन करते हैं कि IT वाले, या जैसे अभी बात हो रही थी कि एक वायरल क्लिप हुआ, हाँ। पैसे आ गए। हाँ, अब ये जो नोबेलिटी है हमारे प्रोफेशन की, उसको पैसों के साथ नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल सही है। उसकी जो इज्जत है, रख रखाव लेकिन है, इस प्रोफेशन में पैसे भी हैं, नोबेलिटी भी है। पैसा हाँ, आराम से है। जो IT वाले हैं या इंजीनियर हैं, पैसा आराम से है, वो आप जैसे एक सुलझे हुए अच्छे प्योर प्रॉपर डॉक्टर्स के लिए। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पैसा फिर भी बना रहे हैं। वो तो फिर 2 नंबर बहुत सी निकाल लेते हैं ना बीच में। होती है। और वो मुर्दे को भी वेंटिलेटर पे लगा देते हैं, बंदा मर गया होता है वेंटिलेटर पे लगा देते हैं। Appendix का कुछ नहीं है, appendix हो रहा है। बिल्कुल हाँ, ठीक बिल्कुल। है। और ऑपरेशन करवाने कोई जाते हैं, करवा के कोई आ जाते हैं, पाकिस्तान अंदर में- कैंचियां छोड़ी होती हैं। पाकिस्तान में ना मसाइल बहुत ज्यादा है ना? है पॉपुलेशन के साथ। दूसरा, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या फैसिलिटीज नहीं है। जैसे मैं शुमाली इलाका जात में जाती हूँ ना, जब कभी जी, सैर जी। करने गए, जी, जी, जी। तो मैं देख रही होती हूँ कि ये यहाँ पे क्या मेडिकल की सहूलत है। हाँ, अच्छा, अब अगर आपने वो मीम सुना होगा कि पूरे पंजाब में अगर कोई बीमार होता है तो कहते हैं पेप्सी पिला दो, 7 अप पिला दो, पट्टी पिला दो या लौ ले जाओ। हाँ, बात ये है कि हम मैदानी इलाका है पंजाब का जी, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी बड़े शहरों में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो उतने एस्टेब्लिश नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। THQ, हाँ, DHQ हाँ। बहुत सारे। वो और जो प्राइवेट सर्व कर रहे हैं वो सारे इर्द गिर्द के वो सब कह देते हैं शाम के वक्त लाहौर ले जाओ। हाँ, तो हमारे लाहौर के जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जी। उन पे आम दिनों में तो लोड होता ही होता है, लेकिन ईद के दिनों में यकीन माने कि जितने ये हमारे लाहौर के जी, डॉक्टर्स हाँ हैं जी, ना, ये बेचारे बहुत कुर्बानी दे रहे हैं। अच्छा, ये ना, मेरा ख्याल में मेरी बाजी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिना में भाई भी, हाँ। मैं भी बहुत साल में हूँ, मैं बिल्कुल। बहुत ईदें अस्पताल में गुजारी। मतलब कि ईद पे आप लोग भी ज्यादा सर्व करते हैं। देखिए, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं ना जिसमें जिनकी छुट्टी नहीं है, जैसे पुलिस वाले। हाँ, और मार लेते हैं छुट्टी, आपको नहीं पता। सारे नहीं मार सकते ना। लेकिन कहीं ना कहीं तो है। हाँ, हाँ, तो इसी तरह डॉक्टर्स भी, और खासतौर पे जूनियर डॉक्टर्स बहुत कुर्बानी दे रहे बिल्कुल होते हैं सही कह अपनी रही हैं, ड्यूटी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जर्नलिस्ट को भी मैंने देखा। आज सारा दिन हमने न्यूज़ एंकर्स की कुर्बानियों का सुना है।
हैं? सारा दिन हमने जब मॉर्निंग में ईद की चीजें चल रही थी तो अब हमने न्यूज एंकर्स की कुर्बानियां सुनी. वो कहते थे हम सुबह आते हैं, जी, बिल्कुल. ब्रेकिंग दे रहे हाँ, होते हैं बिल्कुल, और वो सब कुछ है. तो बिल्कुल. ये तो जाहिर है कि फिर साथ आप ही साथ के है. अदारे से एक मेरे जानने वाले हैं, मैं उनको बचपन से जानती हूँ. हैं? तो वो मैंने उसको एक दफा बहुत डांटा. मैंने कहा मतलब तुम्हारी कोई ईद तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं है, हाँ. बहन भाइयों के साथ नहीं है, उस अदारे के साथ ठीक है तुम बहुत लॉयल हो. बिल्कुल सही. लेकिन अगर ईद अपनी फैमिली के साथ नहीं हाँ. है ईद का दिन, तो मेरा ख्याल में फिर क्या फायदा सारी जिंदगी असल में मेहनत ये भी करने फैमिली बन जाती है ना. अगर फैमिली ना होती तो तहमीना के कहने पे जोएब भाई ने आना था. से. नहीं आना मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रही, लेकिन लाइफ में बैलेंस है ना. जाहिर है. बिल्कुल ऐसे जो है. खून के रिश्ते हैं, देखिए आजकल एक और चैलेंज जो हम सारे ही फेस करते हैं जी. और खास तौर पे जो मर्द हजरात हैं वो अपने से जुड़ी खवातीन में कहती हैं कि फ्रेंडशिप्स ज्यादा है ना. जी जी किटी जी. पार्टीज भी हमारी औरतों की हाँ, होती हैं. हाँ, हाँ, तो घर के मर्दों को होता है कि ये औरतें घर का टाइम नहीं देती. तो बैलेंस बिटवीन ब्लड रिलेशन एंड फ्रेंडशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल और सही. ईद का दिन ऐसा है जिसमें आपको ये तय करना होता है कि ये दिन आज मेरी फैमिली का है. और ये किस किस का कितना कितना है. हाँ, ना? किसका कितना. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. खवातीन की जब हम बात करते हैं, जाहिर है औरत हर घर में कहीं बेटी, कहीं बहन, कहीं माँ, कहीं बीवी मौजूद है, हर रूप में कहीं ना कहीं है. और मर्द की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली शॉपिंग उसकी जिम्मेदारी है, मेहंदी लगवानी है, ये सब कुछ करना है. ये सारी जिम्मेदारियां यकीनन चांद रात को भरपूर अंदाज में आपने मनाई. वो क्या चीज है जिसको आपने मिस किया कि मैं इस दिन ये चाहता था, यार मुझे ये बात नहीं पूछी किसी ने. मैं अभी मेरे बच्चों को मैं शॉपिंग करवाने लेके गया था मॉल में, तो वो लाख रुपए तक चले गए उनकी शॉपिंग ना. छोटे मुझे 2500 रुपया मिलता था, 1500 रुपया मिलता था यूजुअली, जिसमें 2 पैंटें आती थी, 150 की 250 की पैनोरामा से पैंट मिलती थी. एक टी शर्ट ले लेते थे या शर्ट ले लेते थे. अगर सर्दी में, उस वक्त सर्दी में ही थी, तो जैकेट लेते वक्त बड़ी परेशानी होती थी, जैकेट पुरानी पहननी पड़ती थी. तो वो बड़े थोड़े पैसे होते थे क्योंकि पापा पैसे देते थे, तो वो इतना होता था कि इसके अंदर सब कुछ पूरा करना है. जॉगर्स लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं था. या तो 2 शर्टें कम करो तो जॉगर आएंगे, तो बड़ा हिसाब किताब होता था. और मैं जब अपने बच्चों को शॉपिंग करता हुआ देख रहा था ना, तो मैंने एक को मना किया. अच्छा. मैंने कहा नहीं ये नहीं लेना. तो उसका जब मुंह बना ना तो मेरा दिल किया चलो यार ले दो इसको. फिर आपने कहा नहीं, ठीक है. मेरा अपना टाइम याद आ गया ना कि यार वो कितना मुश्किल तो था. तो ये अपने बच्चों को देख के लेकिन यही चैलेंज है. मैं आपको बताऊं कि इसी वक्त आप बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे ना तो वो उनको सिखाएंगे. बस आपको नहीं पता इन्होंने कितना डिसिप्लिन रखा है. ये मतलब मैं डिसिप्लिन है. पर्सनली नहीं कह रही. डिसिप्लिन है. मेरी एक आवाज पे वो खड़े हो जाते हैं. नहीं, नहीं लेकिन पर्सनली नहीं मैं ये कह रही. बता रहा कि एज अ पेरेंट जो दिल की बात है. मेरी कमियां जो थी ना मुझ में, मैं सोच रहा था कि इनमें पूरा दिल कर रहा था पैसे खर्च हो गए ना, उसे और खर्च कर दो. हाँ. कि इनके लिए तो है, इनके लिए तो इतनी बिल्कुल मेहनत ऐसे की है, दे दो इनको, ये भी दे दो वो भी दे दो. इसकी क्योंकि मिसाल ये- ऐसे है, सॉरी, हाँ नहीं बताओ. कि हमारे घर में बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं. जाहिर है हाँ. जो पहले बेटी पैदा हुई अगर, तो उसके लिए जो भी लड़का कोई चीज लेकर आ रहा है, डॉल तो लेकर आ रहा है, साथ में रेसिंग कार भी लेकर आ रहा है. तो मैंने कहा यार ये रेसिंग कार क्यों लेकर आ रहे हो? कहता सफदर भाई साडा नहीं दिल करता खेडन दा. असल में हम दिल तो किसी अभी भी खुशी बच्चा है में ना? अपनी चीजें ढूंढ खुशी रहे में अपनी चीज ढूंढ रहे होते हैं. जे- जोएब भाई ने जो बात की ना कि पहले तो रोका, वो जाहिर है डिसिप्लिन किया, फिर उसके बाद ठीक है यार ले लो. अच्छा, आपको एक बात लगता है ना कि ये जो कमी कह रहे हैं ना कि जो अपनी महरूमी कह लें, कमी कह लें, मोहब्बत. हाँ, और ये हम चाहते हैं हमारे बच्चों को. खिलौनों वाली बात से जो मिस्टर सफदर ने की है, वो खिलौने, मैं अब खिलौने लेके आता हूँ, मोस्टली ऐसे खिलौने होते हैं जो मुझे पसंद है. यस. अभी भी. अभी भी मेरे बच्चे सोच रहे थे ये क्यों लेके आए हैं? मैं पता नहीं रहा, अच्छा लगा था अच्छा लग रहा था. बिल्कुल सही है. ईद मुबारक उन लोगों को जो पाकिस्तान में नहीं है, दूर हैं और आपके प्यारे हैं, कह दीजिए. आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. आप मुल्क से दूर हैं, अपनों से दूर हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको इसका एहसास अगर आपके दिल में है, क्योंकि एहसास से ही इंसान होता है, और बेहतरीन इंसान होने के लिए आपके अंदर एहसास होना बड़ा जरूरी है. ये जो कमियां होती हैं ये इंसान को बेहतर बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, निखारती हैं. वो कहते हैं ना सोना जब आग में भट्टी में जाता है तो ही कुंदन बनता है. तो मुश्किलात को यही सोचा करें कि ये आपको बेहतर बनाने के लिए. वो इकबाल का शेर था ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा अब्बास, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. तो अगर परेशानियां हैं कोई बात नहीं, फेस करें, और अल्लाह ताला आप पे उतनी ही मुश्किलात डालता है जितनी आप उठा सकते हैं. जितनी आप में सक्कत है उससे ज्यादा, आपकी सक्कत से ज्यादा परेशानी आपके ऊपर नहीं है. थोड़ा सा ऐसे नहीं करना. ये अल्लाह का वादा है.
2 दिन से तबीयत बड़ी आवाज़दार हुई है ना, बस तो बस ऐसे ही, अब ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते। बस ऐसे ही जरा चल रहा है। असल में तमीना ने वो ईद वाला वो टच दे दिया। वेरी गुड। तो खुश रहे, सलामत रहे, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सफदर साहब कुछ कहना चाहते हैं, मोहब्बत का मैं- पैगाम देना चाहते हैं? उससे मिलना तो उसे ईद मुबारक कहना, एक मिनट जरा गौर से सुनो। उससे मिलना तो उसे ईद मुबारक कहना, हाँ। ये भी कहना मेरी ईद मुबारक कर दे। आप जिनसे मिले उनकी ईद मुबारक हो जाए, जो आपसे मिले उनकी ईद मुबारक हो जाए, और अगर आपकी वजह से किसी की ईद मुबारक नहीं हो पा रही तो कोशिश करें कि उनकी ईद मुबारक कर दें। अगर आपको लगता है कि आप किसी के पास जाएंगे आपकी इज्जत नफ्स मजरू होगी, आपकी अना को ठेस पहुंचेगी, तो यकीन करें आपकी अना को ठेस नहीं पहुंचेगी, आपकी रूह को जो तमानियत मिलेगी उस मुआफी मांग लेने से या उस गले लगा लेने से उसका नेमुल बदल कहीं नहीं मिलने वाला। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैंने यही पैगाम दिया। मजा आ गया। बेहतरीन बेहतरीन। डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी? वैसे तो मुझे पता ही है, लेकिन आप बताएं आप क्या कहेंगी? मैं ये महसूस करती हूँ कि ईद का दिन फितराने से शुरू होता है ना, जी तो जो लोग हमारे साथ वो खुशियाँ नहीं मना सकते, साहिब हैसियत नहीं है, उनकी खुशियों का हम खूब ख्याल रखें। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे हमारे वो मुसलमान जो इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, उनके लिए ये ईद थोड़ी फीकी है इस हाँ दफा। बिल्कुल बिल्कुल जो आलमी हालात हैं जी, उसकी वजह से, लेकिन फिर भी अल्लाह का हुक्म है, हमने इबादत की अल्लाह की, अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। और ये जो हमने 30 दिन की रूटीन बनाई हैबिट मेकिंग की, जी ये हमारी चलती रहे। बिल्कुल सही। यही हमारी ईद की खुशी है और ये पूरा साल यही कायम रहे। जबरदस्त जबरदस्त। वैसे तो मेरे पास बहुत सी अभी बातें थी जो मैंने सबसे अलग अलग करनी थी, लेकिन चूंकि टाइम शॉर्ट है और टाइम कंप्लीट हो गया, कब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और कब इसकी क्लोजिंग भी हो गई पता ही नहीं चला। आप तमाम लोग ईद की खुशियां भरपूर अंदाज में अपने प्यारों के साथ मनाएं, और एक जुमले से आज के प्रोग्राम की क्लोजिंग एंडिंग ये है कि अभी भी मौका बाकी है। वो लोग जो अभी भी नाराज हैं, वो गलती जो अभी भी रह गई आपके अंदर, अपने अंदर, उसको अभी भी सुधारें। यकीन करें बड़ा सुकून मिलता है, और अंदरूनी सुकून असल सुकून होता है, और जिंदगी इसी का नाम है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।